Okay, so good morning everyone. Last time was our first lecture of integration and I had already given you the list of standard formulae and told you all to complete those formulas. We had also tried, to solve few problems, right? Okay. So I hope you all would have revised the formulae, by hearted the formula and came for the lecture. Please switch on your video, all of you. All of you, please switch on your video. Am I audible? Yes, please keep everyone, keep your video on, come on. Fine. Hi, good morning, Bimlesh, Priya, Ishwar. Other people, please do it fast. I will straightforward remove you all otherwise. Keep your video on. So let us start with Bimlesh. Bimlesh, you were there in the last class. थे आप last class में? Unmute and answer. Yes sir. हाँ, ठीक है. फॉर्मूले बुक वीक बंद कर दो. ये बाहर किया है फॉर्मूला आपने? Yes sir. तो इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 6 क्या होगा? X raised to 6. So 6 raised to 6x raised to 5. वो तुमने डेरिवेटिव बता दिया बिमलेश. 6x raised to 5 is the derivative of x raised to 6. I am asking integration of x raised to 6. तौहीद, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है? Integration of 1 upon x is log x. Sorry? Log x. Okay. Integration of sin x? Sin x cos x. Cos x? Yes. इंटीग्रेशन sin cos होता है? मैंने बोला था ना, I डेरिवेटिव don't. और इंटीग्रेशन मिक्स हो जाता है. ठीक है, तो आपको उसको अच्छे से करना है. साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस होता है. Okay sir. नहीं अच्छे से याद किया है अभी भी. शिवम? Yes sir. इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x? A raised to x. A raised to x upon log a. इतना टाइम देख के बताओगे तो पता चल ही जाएगा. tan x का इंटीग्रेशन? Sec square x. वो तो डेरिवेटिव होता है बच्चा. पर tan x का नहीं आता है. tan x का बोलना चाहिए आपको सर, आपने फॉर्मूला ही नहीं दिया है. Sorry sir. तो मतलब मैं पूछूंगा तो आप आंसर देना है, मतलब आप दोगे. उतना भी तो कॉन्शियस होना है किसका फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला नहीं है. प्रिया? Yes, sir.
Yes, sir. Integration of cos x, Sin x plus c. sin x plus c. Yeah. Integration of 1 upon x, Log module x plus c. integration of a raised to x, E raised to x upon log a plus c. integration of cot x, माइनस cos x स्क्वायर cot x ने ऐसा नहीं है फॉर्मूला का नहीं है फॉर्मूला, या ठीक है। माइनस कोस एक्स स्क्वायर जो आप बोलने जा रहे थे वो या डेरिवेटिव, व्हाट फॉर दैट इज cot डेरिवेटिव, x या ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1, x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x raised to 5, 1 upon x raised to 5. X raised to minus 5 plus c means x raised to x raised to minus 5. yes, 1 upon x raised to 5. How will you find its integration? Is it in the standard form? No, means it is not. We can take that up, so it becomes x raised to minus 5, and Okay, its integration will be x raised to minus 4 upon minus 4. 4, n Yeah, plus 1 upon n plus 1 ही होता है ना, yeah. whatever is the power of x that will come Yeah. to the denominator. Hmm. Good. Thank you, sir. Okay, Anurag Yadav. Yes, sir. Sir, Integration, हाँ just बोलो। as I was absent from the first lecture. अरे why? Sir, I was not feeling well. That's why. Okay, मैंने रिकॉर्डिंग में नहीं भेजा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा फिर तुमको, ठीक है। नहीं सर 11th में किया था ना. I will understand. अच्छा 11 में किया था ना बेसिक फॉर्मूलेज। Yes, sir. ठीक। What about other students? 5-6 people have switched on their video. What about other students? Kushal Singh, please switch on your video. Kushal Singh. हाँ रुचि, हो गया फॉर्मूला लर्न? रुचि, आवाज नहीं आ रही आपकी। ईश्वर, फॉर्मूला लर्न हो गया? हाँ, तो कुशल बताएंगे अभी। फॉर्मूला याद हो गया कुशल? नो सर, आप थे क्या लास्ट लेक्चर में पहले? नहीं था सर, आवाज नहीं आ रही कुशल आपकी। नहीं था सर। नहीं थे तो फिर पूछना चाहिए था ना, इंटीग्रेशन में लास्ट लेक्चर में क्या कराया था। 11th में तो पढ़े थे ना, अनुराग ने जैसे बताया वही तो फॉर्मूलेस किए थे हमने। रुचि, अभी आवाज आ रही है आपको? रुचि अनम्यूट करो। मेरी आवाज आ रही है आपको लेकिन आपकी नहीं आ रही है। ईयरफोन तो कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, बाकी लोग किधर हैं? गायब हो गए सब लोग। सोहन, सेजल, सृष्टि, वैष्णवी,
लेट मी टेक अ क्लिक। मैं आपके पेरेंट्स को फोन करके यही बोलने वाला हूँ कि आप लोग प्रेजेंट ही नहीं हो लेक्चर के अंदर। वीडियो ऑन करने में क्या प्रॉब्लम है? चलो ठीक है। You all can turn off your video now. So today is the second lecture of integration. But before I start that, let me just go through all the formulae once again. Okay, so last lecture we started with integration. Integration is nothing but it's anti-derivative. Okay, just opposite of derivative. What does it mean? If the derivative of a function fx is f dash x, then the integration of f dash x is fx. It is completely opposite of derivative. Okay, and then we started with integration of some standard functions. Okay, like integration of x to the power n, x raised to n plus 1 upon n plus 1. हर एक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में प्लस सी होता है। मैंने बताऊंगा, ऐसा बोला था मैंने। I'll tell you later the reason behind plus c. 1 का इंटीग्रेशन x, k का इंटीग्रेशन kx. 1 upon x is the only term where we cannot apply x raised to n. अदर फॉर्मूले आएंगे ना, अगर 1 upon x raised to 5 है तो उसको ऊपर लेके जाने का, x raised to -5 हो जाएगा, फिर वापस फर्स्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल है। बट 1 अपॉन x में क्यों नहीं? क्योंकि x का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, और अगर n -1 होगा तो -1 + 1 0 होगा, डिनोमिनेटर 0, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द डेटा एक्सेप्ट व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, उसके बाद हमने देखा a raised to x का फॉर्मूला, दैट इज a raised to x अपॉन log a e raised to x is e raised to x। साइन कॉस वाले जरा अच्छे से करने, क्योंकि डेरिवेटिव और ये मिक्स हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। कॉस का डेरिवेटिव साइन, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस, सेक स्क्वायर का tan x, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट, सेक x tan x का सेक x, कोसेक कॉट का माइनस कोसेक। तो आप देखोगे तो इंटीग्रेशन हमको स्ट्रेट फॉरवर्डली केवल साइन और कॉस का मालूम है, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, बाकी ना तो टैन, कॉट, सेक, कोसेक किसी का नहीं मालूम है, राइट? ये सेक स्क्वायर है, ये कोसेक स्क्वायर है, ये सेक टैन है, ये कोसेक कॉट है, तो वो 4 फॉर्मूलेज हमको नहीं मालूम है। ठीक है, उसके बाद हमने अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन किया। दो फंक्शन के अगर इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन कैन बी सेपरेटेड, माइनस है तो भी कैन बी सेपरेटेड, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट, और फोर्थ वाला मैंने बोला था आपको बाद में करना है। और इस बेस पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। ठीक है, okay, now we will solve few more problems। देखो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव जैसे कंप्लीट हो गया और अब आपको डाउट आ रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन उससे भी लेंदी चैप्टर है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो अगर आप रेगुलरली स्टडी नहीं करोगे, रेगुलरली चीजों को प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो डेफिनेटली बाउंसर जाने वाला है बाद में, क्योंकि आने वाले 2-3 चैप्टर के अंदर यही पूरा है। तो बिल्कुल इसको आप हाँ इजीली मत लो कि नहीं मैं कर लूंगा एंड ऑल। ठीक है, आपको साथ में साथ ही वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर?
Okay. Fine. Now, today we will start with exercise, but before with exercise question number 2, let me take integration of some more special function. Okay. So ये सारे स्पेशल फंक्शन कैसे हैं कि इसका ये कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, तो उसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर स्पेशल फंक्शंस। ये फॉर्मूले नहीं है, बस इसका मेथड याद रखो कि हमने कैसे सॉल्व किया। इसको एज अ फॉर्मूला आपको रट्टा नहीं मारना है, डोंट वरी। जैसे सबसे पहला आया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर अगर आया तो कैसे करोगे। यस, यहाँ चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव थोड़ी ना है ये, ठीक है। डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ भी आने दो। इसको एक्स रेस टू एन समझ लेते थे हम लोग। इंटीग्रेशन में एक्स रेस टू एन ही दिखेगा तभी हम कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे? हमको साइन एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है, माइनस कॉस, राइट। बट किस स्क्वायर में इंटीग्रेशन मालूम है क्या? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का। हमको स्क्वायर में एक tan स्क्वायर इसका मालूम है, सेक स्क्वायर का मालूम है, और कोसेक स्क्वायर का मालूम है, करेक्ट। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का तो मालूम नहीं है। तो आपको ये स्क्वायर को निकालना है, तो आपको ट्रिगो का ऐसा कोई फॉर्मूला सोचना पड़ेगा which can replace sin square with without square वाला term. So if you recall a formula, you have 1 minus cos 2 theta. क्या होता है? 2 sin square theta, correct? So from here you can easily get sin square theta as 1 minus cos 2 theta upon sin square theta. Understood? ओके अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को ये वाला पार्ट बताया था क्या कि जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, बट साइन के आगे अगर कोई एंगल चेंज हुआ तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? आई थिंक वो मैंने नहीं बताया, क्यों स्टैंडर्ड वाले ही क्वेश्चंस हमने किए थे, राइट। हाँ, तो इसके पहले मुझे वो बताना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हम कॉपी पेस्ट करके नीचे लिखते हैं पहले, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे लेके आते हैं। यस, अभी बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात है, एकदम ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेटिव में मैंने जैसा बताया, कोई भी आने दो फंक्शन, उसको हम अपने स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस और नो। उसको एक्स रेस टू एन में कर लेंगे, ए रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, जैसा रहेगा वैसा हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। आपने देखा इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले में एक्स है, राइट। तो सपोज दिस इज द रूल एक्चुअली, ध्यान से देखो, इफ इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन विच इज इन एक्स इज कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। और सपोज आपको क्वेश्चन में आया इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन आया, लेकिन उस फंक्शन में x के जगह ax प्लस b है, ध्यान से सुनो, ax प्लस b है। अब ax प्लस b क्या है? तो इसके बारे में आप बोल सकते हो सर ये लीनियर फंक्शन है। यस, लीनियर इक्वेशन है विथ वन वेरिएबल, विथ वन वेरिएबल। लीनियर मतलब वेरिएबल का जो पावर है वो 1 होना चाहिए। तो रूल ये बोलता है अगर हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन में x के जगह लीनियर फंक्शन इन वन वेरिएबल आएगा
the formula will be still available. You can still apply the formula. Yes, it means fx का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल fx है तो आप f of ax plus b का इंटीग्रेशन लिख सकते हो कैपिटल f of ax plus b. एंड एक चीज बस एक्स्ट्रा होगी कि उस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में x का जो कोएफिशिएंट होगा उससे हमको उस पूरे आंसर को डिवाइड करना होगा. I'll tell you with the example, you will understand. देखो यहाँ पर अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि साइन ऑफ 5 माइनस 2x फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये सोचना है कि क्या मैं स्टैंडर्ड फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं क्या. तो ये दिख तो रहा है साइन ऑफ x के जगह, बट x के जगह पर क्या है यहाँ पर 5 माइनस 2x. इज इट ax plus b? yes or no? is it linear equation in one variable? तो आपको बस क्या देखना है, एक वेरिएबल होना चाहिए. तो है एक वेरिएबल x, ठीक है, उसका पावर कितना है 1 है, तो यस सर इट इज एप्लीकेबल है. तो बस फॉर्मूला अप्लाई करो. साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो साइन 5 माइनस 2x का होगा माइनस कॉस 5 माइनस 2x, and then you will divide it by the coefficient of x. What is the coefficient of x? minus 2. So you will divide by minus 2 and then plus c. Have you all understood? This is the only thing which we can do for integration if we have other than standard function. Another example. Integration of 2x plus 3 dx. This question looks like which standard function, बच्चों? Which standard function? Come on. So you can easily make out, sir, this is like 1 upon x. And x is replaced by a linear equation in one variable. So what is the integration of 1 upon x? It is log of mod x. So here also I can apply the formula log of mod x divided by coefficient of x, which is 2, and then plus c. This is the answer. सबके दिमाग के अंदर जा रहा है ये सारी चीजें. How am I doing all this? Okay. Let me solve one more problem. Suppose if I have integration of x square plus 1 raised to 3. Which formula does it look like? Come on, fast answer me. X raised to n. Okay. But this thing, can we apply here x raised to n ka formula for integration? It looks like x raised to n. But can we apply? Because it is not direct x raised to n. It is something raised to n. Can we apply the formula? Priya saying yes. What about other students? Come on, fast. Can we apply integration x to the power n formula? Yes. So if you see what is there in place of x, this is the term in place of x. But don't you think, student, that this is
not in the form of ax plus b, isn't it? Is it a linear equation? It is not a linear equation in one variable. If it is not, we cannot apply the formula. So if you write this as फॉर्मूला लगा के x रेस टू प्लस वन रेस टू n प्लस वन अपॉन ऐसा किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो अगर ऐसा आया तो क्या करेंगे सर? फिर आपको क्यूब का फॉर्मूला लगाने का. रेस टू 3 है ना, तो पहले इसको एक्सपांड करो, a प्लस बी का होल क्यूब. ए क्यूब मतलब x रेस टू 2 रेस टू 3 तो 6. 3a स्क्वायर b तो 3 फिर a स्क्वायर तो x रेस टू 4 प्लस 3ab स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस b रेस टू 3 तो 1. सबको समझा क्या? एंड नाउ आई कैन इंटीग्रेट ना, सेपरेट कर सकता हूँ ना हर एक टर्म को. अब हर एक टर्म तो स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया ना. हेलो, तो x रेस टू 6 का इंटीग्रेशन में अलग से कर सकता हूँ. x रेस टू 7 अपॉन 7. 3 को बाहर रखा, फिर x रेस टू 4 का इंटीग्रेशन x रेस टू 5/5. फिर 3 को बाहर रखा, x रेस टू 2 का इंटीग्रेशन x रेस टू 3/3 और फिर 1 का इंटीग्रेशन x और लास्ट में प्लस c. तो इसका आंसर इस तरीके से सॉल्व होगा. चलो कम ऑन, यस नो, अंडरस्टूड और नॉट? If you attend all my lectures of integration, ठीक है, if you at least devote 1 hour for integration every day, not only for integration but for all calculus chapters starting from derivative, and no one can stop you to score full out of full in maths too. And if you don't do, even to get 10 marks in maths too is very difficult for you, because as I told you, all chapters are linked to each other. So please be with me, practice regularly along with me, solve the questions along with me, right, in the lecture also. And after that you practice. It's not that one problem, like 5 problems I did in the class. When I do, you are learning, but you have not done it by your own. You have just looking at me and you're solving it, right? So you should try it once again. So see, this is all things that you should do. Every time I should not tell repeat. This is not something imposition I'm giving you ना, 2 बार लिखो 3 बार लिखो. वो करूंगा तो क्या करोगे आप? अगर मैं मैंडेटरी कर दिया, गूगल क्लासरूम में अपलोड करने को बोल दिया, तो आप कॉपी करके लिख के होमवर्क सबमिट करोगे. आई डोंट वांट दैट. आपके वजह, आप खुद समझना चाहिए कि मुझे अगर इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे मैथ्स 2 में अच्छा स्कोर करना है, तो आई हैव टू प्रैक्टिस. ओके, बिकॉज सो मेनी स्मॉल कंसेप्ट्स विल कम. तो वो आपको अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी वेरी बाउंसर फॉर ऑल ऑफ यू. जैसे जैसे आगे हम जाएंगे. लेट मी टेक फ्यू मोर प्रॉब्लम्स. 4. Integration of sine of, or some other angle I will take, cos of x square plus 1. It looks like cos x. Can we apply the formula of integration of cos x? Yes or no? Yes, come on. Absolutely correct. No sir, we cannot apply because the angle is not a linear equation. Correct? So I hope you all understanding when to apply, when not to apply. Correct? Sec square x plus 2. Yes, this looks like a formula of integration of sec square x. Come on. तो sec square x का तो इंटीग्रेशन मालूम है, sec square x का tan x होता है. तो बट क्या मैं sec square x plus 2 में फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? yes or no? yes, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x के जगह यहाँ पर x plus 2 है, दैट्स ऑल. तो इट्स अ लीनियर इक्वेशन. तो sec square x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो इसका हो जाएगा tan of x plus 2 डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट.
यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है तो यानी डिवाइड बाई 1, तो बट ऑब्वियस वो तो सब जगह रहता है, राइट? कहीं भी अगर डिवाइड नहीं है तो दैट मींस इट इज डिवाइडेड बाई 1। सबका मालिक एक। इज इट ऑल राइट एवरीबॉडी? इंटीग्रेशन ऑफ 5 raised to 2 minus 3x. Which formula does it look like? A to the power x. So we know that a to the power x integration is a to the power x divided by log a, right? So can we apply the formula? Is it looking like a linear equation? So you'll say yes sir, it's 2 minus 3x. So yeah, 5 raised to x है और x के जगह linear है, I can apply that. So the formula is a raised to x यानी same term divide by log a. तो log a मतलब log 5 हो गया, ये तो फॉर्मूला हुआ। अब हमको वो जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उससे डिवाइड करना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x -3 है, तो ये डिवाइड में ही मैं यहाँ पर -3 लिख सकता हूँ। एवरीवन अंडरस्टूड? चलो, सो आई होप कि सबको ये जो इंटीग्रेशन का एक्सटेंडेड फॉर्मूला है, जो अगर x के जगह लीनियर इक्वेशन आया तो हम कैसे सॉल्व करते हैं वो सबको समझ में आ गया, राइट? ग्रेट, very good. Let's go ahead now with this formula. Now I was talking about sine square x. Now first it looks like x raised to n, yes or no? अभी डेरिवेटिव किया है तो पहले तो ये क्या दिखता है, x raised to n. बट कैन वी अप्लाई x raised to n का फॉर्मूला? तो अभी मैंने बताया ना, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए x के जगह लीनियर होना चाहिए, तो साइन फंक्शन है ना x के जगह, साइन रेस टू 2, तो वो तो नहीं हो सकता ना, लीनियर होना चाहिए, राइट? तो इसके लिए हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं साइन स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस करूंगा, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस, and I can see this 2 is a constant, can be taken out because whole upon 2 है, and then integration 1 और cos 2x हो सकता है ना, cos के अंदर linear है, तो I can apply the formula, come on. So 1/2 I took it outside, 1/2 मतलब ये 1 नहीं लेना, हाँ मैं 2 ले रहा हूँ, तो 2 ले रहा हूँ मतलब 1/2 ही होगा ना, ऊपर अभी भी क्या है 1 माइनस cos 2x, ठीक है। नाउ स्टार्ट इंटीग्रेटिंग, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x, चलो cos 2x का इंटीग्रेशन बता दो, टेल मी इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। टेन सेकेंड्स मोर। cos 2x नई फॉर्मूला याद है? नो प्रॉब्लम, देख लो फॉर्मूले के लिस्ट में। हाँ, नेक्स्ट टाइम वीडियो ऑन करके मुझे सबका फॉर्मूला चाहिए। हाँ, cos 2x का इंटीग्रेशन, यस, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, सिंपल। तो cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x। I can apply the formula because it is linear, divided by coefficient of x, उसको नहीं भूलना है सब लोग, सबको समझा 2 कहां से आया, ठीक है, एंड देन प्लस c, हो गया इसका आंसर, ठीक है बच्चों। चलो मूविंग अहेड नाउ, सेकेंड वन इसका जैसे ही है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x। अगेन स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो जैसे हमने अभी ऊपर में 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखा था, वैसे ही एक फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा का।
Do you remember this formula? 2 will again come down. So it is 1 plus cos 2 theta upon 2 is cos square theta. There is a question from, you have already replied, no problem. So I hope you all are understanding मैं ये कैसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूँ. हाँ, मेरा एक ही इंटेंशन है कि वो स्क्वायर निकल जाए, क्योंकि साइन और कॉस का स्क्वायर में फॉर्मूला नहीं है अपने पास. ठीक है, तो अभी ये कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2. अगेन जो डिवाइडेड बाई 2 है उसको बाहर लिया मैंने, तो अंदर बचेगा 1 प्लस cos 2x dx, and then again if you integrate, तो 1 by 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c. Understood? Okay. Like that, we also have few more problems, like integration of tan square x. Abhi first tell me students, do we have a formula of integration of tan square x? Do you have a formula? So again you recall, we have a formula of sine, then cos, then sec square, then cosec square, then sec tan, and then cosec cot. Right? We don't have a formula for tan square. So then what will you do? So you'll have to convert into a function whose formula is known to us, isn't it? So how can you write tan square x like I did for sine square cos square, right? Yes. How can you convert tan square now? Tell me. Yes. So here we know that tan square can be written as sec square minus 1, identity wala formula, right? And why can I write like this, sec square x minus 1? Because अब इस टर्म में मुझे sec square का भी इंटीग्रेशन मालूम है और 1 का भी इंटीग्रेशन मालूम है. आप बोलोगे सर वही चीज आप ऊपर करते तो कितना अच्छा रहता. सर साइन स्क्वायर को लिखते आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन बच्चा 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं मालूम ना अपने को. अरे समझा आप लोगों को? साइन स्क्वायर में अगर मैं आइडेंटिटी लगाता और मैं उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखता तो 1 का इंटीग्रेशन तो मालूम है, बट कॉस स्क्वायर का तो नहीं मालूम था, तो इसके लिए हम नहीं कर सकते थे. अब tan स्क्वायर को ऐसा लिखा क्योंकि tan स्क्वायर के अंदर होता है sec स्क्वायर माइनस 1 और sec स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन मालूम है अपने को, इट इज सिंपली tan x, राइट? तो बस 2 स्टेप के अंदर आंसर हो गया. sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c हो गया. समझा सबको? ऐसे ही हम cot square x का भी निकाल सकते हैं. cot square x can be written as cosec square x minus 1. इसका भी इंटीग्रेशन मालूम है. cosec स्क्वायर का होता है माइनस cot x और 1 का होता है ये. सब लोग को समझ में आ गया होगा? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट. ओके, सो दिस आर वेरी सिंपल. तो ये कुछ हम देख रहे हैं, ये सब ना क्या होगा बच्चों, किसी प्रॉब्लम के अंदर ये आएगा, ये एक पार्ट होगा. इसके लिए मैं आपको अलग से पूरा करा दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमको कैसे करना. ठीक है, कुछ और भी हैं, जरा वो भी देख लेते हैं. 5th वन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स. नाउ थिंक,
साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, आई कैन नॉट अप्लाई एक्स रेज टू एन, आई कैन नॉट अप्लाई साइन एक्स, आई कैन नॉट इवन अप्लाई साइन स्क्वायर जो मैंने ऊपर किया। तो कैसे करेंगे इसको साइन क्यूब को? तो हियर आल्सो यू हैव टू थिंक कि देखो साइन का पावर का तो कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं है अपने पास, राइट? tan स्क्वायर cot स्क्वायर cosec स्क्वायर sec स्क्वायर है तो हम कुछ कर सकते हैं, बट साइन और कॉस में तो स्क्वायर का क्यूब का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो हमको ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि साइन क्यूब का ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसके अंदर हम उसको विदाउट पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर तुमको रिकॉल करो तुम, तो साइन क्यूब एक ही फॉर्मूले में आता है, वो आता है साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में। रिमेंबर है साइन 3 थीटा, वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू ट्राई टू फाइंड आउट साइन क्यूब। तो इसको इधर लाया, इसको इधर लेकर गया, तो ये होगा 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा, ये इधर गया, माइनस साइन 3 थीटा। फिर 4 जाके डिवाइड करेगा तो मिलेगा साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4। अब मुझे बताओ, अगर मैंने साइन क्यूब को इससे रिप्लेस किया तो इसके इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आपको नजर में आता है? देखो डिवाइड बाई 4 है तो वो तो बाहर आ जाएगा, 3 साइन थीटा में 3 बाहर, साइन तो नॉर्मल है, और साइन 3 थीटा तो लीनियर है ना, आई कैन अप्लाई। हेलो, समझ में आया क्या सबको ये कन्वर्जन ऑफ साइन क्यूब? So now I am writing this as integration of 3 sine theta minus sine 3 theta whole upon 4. Theta nahi, because it's x here, so I would like to write x sine x 3x dx. Okay. अब ये जो अपॉन 4 है उसको बाहर ले लिया, ठीक है, तो यहां पर बचेगा 3 साइन x माइनस साइन 3x dx। एंड नाउ यू स्टार्ट इंटीग्रेटिंग। तो साइन x का तो हमको मालूम है, हाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, करेक्ट, माइनस एज इट इज। अगेन साइन लीनियर, तो साइन x का माइनस कॉस, तो साइन लीनियर का माइनस साइन लीनियर डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट विच इज 3। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? थोड़ा एडजस्ट कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चाहिए तो 1/4 को अंदर भी ले सकते हैं, ले लेते हैं, चलो। तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो होगा माइनस 3/4 cos x, ये माइनस प्लस, तो 1/12 हो जाएगा, 4 3 साइन 3x। सबको समझ में आया? यस और नो? सर साइन का इंटीग्रेशन होगा ना, कॉस होगा ना वो? नहीं ना, साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस है ना, वो डेरिवेटिव है प्रिया। साइन 3x, हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पर गलती लिख दिया मैंने, हाँ ये साइन का कॉस माइनस कॉस, ये बोल रहे थे। एवरीवन अंडरस्टूड? साइन का कॉस है ना, वो गलती से मैंने साइन का साइन ही रख दिया, बोलने के टाइम मैंने कॉस बोला, लेकिन ठीक है, अंडरस्टूड। चलो वेरी गुड। अभी इसके जैसा ही कॉस क्यूब का होगा, सेम वे कॉस क्यूब का भी फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन टेक इट फ्रॉम cos 3 थीटा, वो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस
3 cos थीटा, 3 cos थीटा को इधर भेजा तो cos 3 थीटा प्लस 3 cos theta is 4 cos cube theta. So from here 4 can be transferred here. So cos 3 theta plus 3 cos theta divided by 4 is cos cube theta. ठीक है, तो बस इसको रिप्लेस करेंगे इस फॉर्मूले से. So cos 3x plus 3 cos x divided by 4 dx. Again that divided by 4 can be taken common. So it will be simply cos 3x plus 3 cos x. इंटीग्रेट कर दो अभी, 1/4 कांस्टेंट है बाहर आ गया. cos 3x का इंटीग्रेशन तो cos x का sin x होता है, cos 3x का sin 3x, बट डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट प्लस ये 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos का इंटीग्रेशन sin x plus c. Maximum you can take 1/4 inside, so it will be 1/12 sin 3x plus 3/4 sin x plus c. Have you all understood? Yes. Okay. शिवम देखो तुम, जरा लग रहा है कि साइमल्टेनियसली आप व्हाट्सएप पे भी हो, आपके मैसेजेस आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो, मैसेज पेस्ट कर रहे हो. चलो, साइन क्यूब कॉस क्यूब का हो गया, सबको समझ में आ गया. ओके, सपोज इफ यू हैव अ फॉर्मूला sin raised to 4. Now we don't have any formula, right? जो sin raised to 4 का होगा, एक बार sin स्क्वायर रहता तो हम कुछ सोच भी सकते थे, राइट? वो जैसा पहले फॉर्मूला किया था, पर sin raised to 4 कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, यूज हम वही फॉर्मूला करेंगे, बट किस तरीके से? sin raised to 4 को we can write sin square raised to 2. ठीक है, और फिर उस साइन स्क्वायर के जगह जो पहले हमने यूज किया था ना, वही फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या यूज किया था? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2. सबको यहां तक समझ में आया? ये स्टेप तक का होल स्क्वायर. जल्दी रिप्लाई करो, समझ में आया यहाँ ये वाला स्टेप? ओके, नाउ यू टेक स्क्वायर. स्क्वायर मतलब ऊपर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, नीचे 2 का स्क्वायर आएगा. यस, अप्लाई द फॉर्मूला. ऊपर a माइनस बी द होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 4. करेक्ट? चाहिए तो आपके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या फॉर्मूला यूज किया. 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है,
अभी ये जो सॉल्व करने के बाद एक्सप्रेशन आया है, अपॉन 4 कांस्टेंट है, दैट कैन बी टेकन आउट। न्यूमरेटर में 1 का इंटीग्रेशन प्रॉब्लम नहीं, cos 2x का इंटीग्रेशन प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इज cos स्क्वायर 2x। तो अभी तो हमने देखा ना cos स्क्वायर को हम वापस कन्वर्ट कर सकते हैं ना नॉर्मल के अंदर। हाँ, तो ध्यान से देखो, इस 4 को मैं बाहर लेता हूं, तो 1/4 हो गया। अंदर क्या क्या बचा जरा देखो, अंदर है 1 माइनस 2 cos 2x, ये तो है। अब देखो मैं cos स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं cos स्क्वायर को कैसे लिखूंगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो cos स्क्वायर यहां से मिलता था 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब मुझे cos स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, cos स्क्वायर 2 थीटा चाहिए। तो जब इधर 2 थीटा है तो इधर थीटा होता है, तो इधर 2 थीटा कब होगा, जब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 थीटा। So don't you think cos square 2x can be written as 1 plus cos 4x divide by 2? सबको समझ में आया ये वाला एक्सप्रेशन? And now you can see all the terms are without power of cos. So I can now simply integrate it. So 1/4 keeping as it is outside. 1 का इंटीग्रेशन is x minus 2 कॉमन, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइड बाई 2 कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस इस अपॉन 2 को बाहर लिखा और फिर ऊपर वाले का इंटीग्रेट किया। मैं जरा डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो 1/2 बाहर, ऊपर वाले का इंटीग्रेशन में 1 का इंटीग्रेशन x, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइड बाई 4 एंड देन द एंटायर ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस c। सबको समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी का हम सॉल्व करते हैं। इस 1/4 को अंदर लेके जाओ, तो पहला होगा x/4, यहाँ पर होगा माइनस 1/4 sin 2x, 4 2 जा 8 और यहाँ पर x है, तो ये हो जाएगा x/8। फिर 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो ये हो जाएगा 1/32 sin 4x प्लस c। हेलो, समझ में आया सबको? लास्ट पार्ट तो जैसे वो टर्म्स को अरेंजमेंट किया हमने, मेन इंपॉर्टेंट तो स्टार्टिंग के स्टेप्स थे। इसको अच्छे से समझ के एक बार सॉल्व कर लो बच्चों। कम ऑन, डू इट राइट नाउ। लेट मी नो इफ इट इज डन। हाँ बच्चों, और कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो कुछ
Okay. Can you all please try cos raised to 4 in the similar manner? Similar manner, cos raised to 4. You all try. Yes, done. Cos square x, cos raised to 4x, sorry. Problem number 8. Same way,
it is cos square x the whole square, and then cos square x can be written as 1 plus cos 2x divided by 2 the whole square. Then this can be 1 plus 2 cos 2x plus cos square 2x divided by 4. 1 by 4 can be taken out. 1 plus 2 cos 2x plus cos square 2x can be written as 1 plus cos 4x divided by 2. Correct? And now I can integrate it. So it's 1 by 4 x plus 2 into cos का integration minus sin 2x divided by 2 upon 2 को बाहर लिया. This will be 1 का integration x cos 4x का minus sin 4x divided by 4. That's all. So you can just take this all constant inside. So it will be x by 4. 2 cancel, plus minus minus, तो minus हो जाएगा यहाँ पर. Minus 1 by 4 sin 2x. 4 2s are 8, तो plus x by 8 minus 1 by 32 sin 4x. Those who have solved got the same answer. Please confirm. It's plus sin 2x. Yeah. Where it is plus sin 2x, we are saying. अच्छा हाँ, क्यों माइनस कर रहे हो? हम लोग तो cos का कर रहे हैं ना. Sorry. Everywhere it's plus only है. Cos का इंटीग्रेशन तो sin x ही होता है ना. It will not be minus. हाँ देखो, मैंने भी क्या कर दिया, डेरिवेटिव सोच लिया ना. तो ऐसा होता है. ठीक है, सॉल्व करने के टाइम we may think here a cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो वही अप्लाई कर देते हैं साइन के लिए. तो हमको ध्यान रखना है. ओके, so almost 8 problems we have done extra, जो आपके बेसिक्स को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा. ठीक है, सो 3.1 वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. अभी बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे जो इसके जैसे होंगे एग्जैक्टली, तो वो आप खुद से मैनेज करोगे. वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? Yes. So now we will start with question number 2. अभी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ही है tan square x. Already solved, yes or no? First already solved. Now let us start with second one. I equal to integration of sin 2x divided by cos x. Tell me what will you do? डिवीजन का तो फॉर्मूला मालूम नहीं है अपने को. इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x whole divided by cos x and then dx. ठीक है, here cos x gets cancelled. What left is 2 sin x. उसका 2 बाहर लिया. इंटीग्रेशन ऑफ sin x. sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x plus c. Answer is done. Minus 2 cos x plus. Everyone understood? Easy one, right? Chalo, moving ahead.
थर्ड वन, I equal to integration of sin x upon cos square x. कैसे करोगे? यस, हाँ, ये भी एक स्पेशल वाला टर्म है, इसको भी याद रखोगे, sin x upon cos square. So you can easily make out here that sir sin square upon cos square है ना, तो cos square मतलब cos into cos है, तो मैं क्या करता हूँ, sin x के नीचे एक cos ले लिया, ठीक है, और जो एक cos बचा उसको अलग से लिख दिया, बट उसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिखना पड़ेगा, करेक्ट। मैंने सेपरेट नहीं किया, वन ऊपर 1 प्लस नहीं था कि मैंने मल्टीप्लीकेशन, आई कैन डू लाइक दिस, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, तो 1 अपॉन कॉस होगा सेक एक्स और साइन अपॉन कॉस होगा टैन। अरे ये तो फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रेशन सेक एक्स टैन एक्स होता है सेक एक्स, हो गया आंसर। यस, चलो लेट्स मूव अहेड, फोर्थ क्वेश्चन। क्या है, cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x, cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x। तो cos 2x का तो फॉर्मूला हमको मालूम है ना, cos स्क्वायर sin स्क्वायर में भी फॉर्मूला है, ओनली cos स्क्वायर में भी फॉर्मूला है और ओनली sin स्क्वायर में भी फॉर्मूला है। तो ओनली sin स्क्वायर वाला अच्छा है ना कि वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो cos 2x का ओनली sin स्क्वायर में फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाई sin स्क्वायर x। डिवाइड कर दो इसको, तो फर्स्ट टर्म आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर दैट इज कोसेक स्क्वायर, और सेकेंड टर्म में साइन कैंसिल, तो ये -2 बचेगा। तो हमको तो दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स और 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस सी, हो गया। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ बट इट्स इजी, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, I is equal to integration of cos 2x upon sin square x cos square x। क्या करेंगे, दिख रहा ही है हमको, नीचे sin square cos square है, ऊपर cos 2x है, तो हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला मालूम है ना, we can write this as cos square x minus sin square x, isn't it, whole upon sin square cos square। डिवाइड कर दो, तो जब पहले टर्म को डिवाइड करोगे cos स्क्वायर के नीचे ये पूरा लोगे तो cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर बचेगा, समझा। और जब सेकंड टर्म के अंदर लोगे तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। सबको समझ में आया, यस और नो? एंड नाउ साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर and 1 upon cos square is sec square dx। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स माइनस एज इट इज, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस सी, हो गया फॉर्मूला आंसर। सबको समझ में आ गया? चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट सिक्स्थ वन, I equal to integration of sin x upon 1 plus sin x। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू बच्चों, देखो ऐसा नहीं है कि मैथ्स में एक ही सोल्यूशन नहीं होता, देयर आर मेनी टाइप ऑफ सोल्यूशन। थोड़े कोई कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाते हैं, किसी में ज्यादा टाइम लग जाता है, राइट। तो
आप कोई भी इक्विवेलेंट स्टेप करो तो उसके ऊपर भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा बताया तो ऐसा ही करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस तरीके से ज्यादा इजी हो रहा है, यू कैन डू दैट वे ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो 1 + sin x है, ऊपर sin x है। अभी कुछ ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है जिससे कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है जिससे थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, बट देन you can normally do by rationalization, right? So I can write this as sin x upon 1 + sin x into 1 - sin x upon 1 - sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। if you solve this, yes, डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा, 1 + sin x 1 - sin x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x into 1 sin x minus sin square x, and denominator is a minus b, a plus b, a square minus b square, so 1 square minus sin square, 1 - sin square is cos square, ऊपर वाला टर्म एज इट इज sin x minus sin square, नीचे होगा 1 - sin square को लिखा cos square। नाउ सेपरेट इट, सेपरेट करोगे तो क्या होगा, इधर आएगा sin अपॉन cos square, sin अपॉन cos square, इधर आएगा sin square अपॉन cos square। थोड़ी देर पहले ही अभी हमने पहला वाला जो टर्म है sin अपॉन cos square उसको देखा था कि sin अपॉन cos square में एक cos को अलग करेंगे तो वो sec दे देगा, राइट, और एक sin के साथ लेंगे तो वो tan देगा, तो ये sec इंटू tan हो गया। ये बचा tan स्क्वायर x, ठीक है, वो एक्चुअली मैं वहीं पर लिख सकता था स्टार्टिंग में, बट डू वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ tan स्क्वायर x डायरेक्टली, नहीं, तो tan स्क्वायर x को लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर x minus 1। हैव यू ऑल गॉट दिस पॉइंट? एंड नाउ यू इंटीग्रेट इट, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x माइनस अंदर गया, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 1 का इंटीग्रेशन x। तो ये आपका फाइनल आंसर। किसी को कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम तो पूछो। Have you all understood? Okay. Let us try the next problem in the similar manner. उसमें भी दिखने से तो लग रहा है कि हमको रैशनलाइजेशन मेथड से ही करना है। tan x अपॉन sec x plus tan x, do rationalization, multiplying and divide by sec x minus tan x, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा tan इंटू सेक, तो sec x tan x माइनस tan स्क्वायर x, डिनोमिनेटर क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी ऑल नो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज 1, यानी नीचे तो 1 हो गया, ऊपर क्या बचा, एक बचा sec x tan x, और tan स्क्वायर को लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर x माइनस 1। सबको समझ में आया? डिनोमिनेटर बिकम्स 1, एंड नाउ यू इंटीग्रेट sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x माइनस इनसाइड sec स्क्वायर का tan x माइनस माइनस प्लस 1 का x। इट्स डन नाउ। समझ में आया सबको?
चलो let's move to the next question now. 8th one. ये सब एक्चुअली बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है. Root of 1 plus sine 2x dx. Okay. So what do you think? अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो 2 स्टेप में आंसर हो गया. Yes, if you remember 1 plus sine 2x का फॉर्मूला, it is cos x plus sin x the whole square. Right? रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचेगा cos x plus sin x. और ये तो सिंपल टर्म्स है. cos x का इंटीग्रेशन sin x और sin x का माइनस cos x. हो गया आंसर. हेलो, फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर बहुत डिफिकल्ट होगा ये प्रॉब्लम. चलो, वेरी गुड. नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x. सेम, हम तो कितने बार यूज कर रही है फॉर्मूला. 1 माइनस cos 2x इज 2 sin स्क्वायर x. ठीक है, 2 के अंदर रूट जाएगा तो √2 आएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा. sin x, sin स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा तो ओनली sin x बचेगा. sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है तो माइनस cos x हो गया. ये आपका आंसर. सबके दिमाग में जा रहा है कैसे कर रहा हूं मैं ये सब सॉल्व. इट्स इजी, सो आई एम लिटिल बिट फास्ट. चलो नेक्स्ट, 10th one. Sin 4x into cos 3x. चलो सोचो इसको कैसे करोगे. अगर एक बार एंगल सेम होता, 4x होता, तो आई वुड हैव थॉट ऑफ अप्लाइंग 2 sin x cos x फॉर्मूला. करेक्ट, 2 को एडजस्ट करके मैं ऐसा करने की कोशिश करता. बट यहाँ तो एंगल ही डिफरेंट है ना, तो वो नहीं कर सकता. सेकेंडली u इंटू वी है, तो आई कैन नॉट सिंपली इंटीग्रेट ईच टर्म. करेक्ट, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी जो मैंने सोचा वो नहीं होगा. तो कैसे करेंगे. तो इसको देखकर आपको किसी की याद आ रही है किसी फॉर्मूले की. एक फॉर्मूला था लास्ट में, डी फैक्टराइजेशन 2 sin a cos b, जो क्या करता था, डी फैक्टराइज करता था, मतलब मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कन्वर्ट करता था. वो होता था साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी. राइट, so if I can have 2 here, I can apply this formula. So what I'll do is I'll multiply and divide by 2, divided by 2, multiplied by 2. ठीक है, now apply the formula. तो क्या होना चाहिए, sin a plus b, तो sin 4x plus 3x plus sin a minus b, so sin 4x minus 3x dx. So it's 1 by 2 integration of sin 7x plus sin x. It's 1 by 2 sin 7x का इंटीग्रेशन माइनस cos 7x डिवाइड बाई 7 एंड sin x का सिंपली माइनस cos x प्लस c. दैट्स डन. समझ में आया सबको. मैक्सिमम आई कैन टेक 2 इनसाइड, so it will be minus 1 by 14 cos 7x minus 1 by 2 cos x plus c. Yes,
Everyone clear? Okay. Let us go ahead. Now this completes your question number 2. So now we are starting with question number 3 का first. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सबके सब बच्चों, ठीक है? तो क्विकली हम देखते हैं, ये सब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने. They all can be a part of a big problem. x upon x plus 2. जब भी आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखे, अभी कोई डिवाइड तो फॉर्मूला ही नहीं है, प्लस साइन कॉस तो है नहीं, आप फॉर्मूला कैसे करेंगे? सो ट्राई टू ब्रिंग डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर. सो x प्लस 2 चाहिए, तो ऊपर मैंने प्लस 2 किया और फिर माइनस 2 किया, so as to bring denominator in the numerator. And now if you separate them, so x plus 2 divided by x plus 2 will become 1, and this will become 2 upon x plus 2. So now it's easy to integrate ना बच्चों. 1 का इंटीग्रेशन x होगा, माइनस 2 बाहर लिया तो ये 1 अपॉन x जैसा है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log mod x डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट विच इज 1 लकीली. तो ये आपका फाइनल आंसर. सबको समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछो. x प्लस 2 एडजस्ट किया, सेपरेट किया, 1 बचा उस साइड, 1 अपॉन x प्लस 2 बचा, गॉट सॉल्व. We can do such adjustments. Yes, definitely such adjustments can be done, no problem. Okay, next. These are algebraic adjustments ना, वो तो यूनिवर्सली ट्रू है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय समथिंग, ये सब तो हम कभी भी कैसे भी कर सकते. चलो अभी ये क्वेश्चन looks like the same. I need to bring 2x plus 1 in the numerator. How will I bring? तो 2x तो ला सकता हूँ by taking 2 common, but what will be done with the constant I don't know. But let's start. Suppose I took 2 common, तो क्या बचेगा? इधर तो 2x बचेगा, 3 में तो 2 था नहीं, फिर भी कॉमन लिया, तो जब ऐसा होता है तो हम डिवाइड करते हैं ना. हेलो, सबको फर्स्ट स्टेप समझा? ठीक है. अभी क्या करूंगा, 2 को एज इट इज रखा ब्रैकेट के अंदर, मुझे चाहिए 2x प्लस 1. मैंने अंदर क्या किया मालूम है? 2x प्लस 1 किया और फिर इस 3/2 में -1 किया. हेलो, समझ में आया ये पॉइंट? यानी प्लस माइनस 1 किया इन शॉर्ट, होल डिवाइड बाय 2x प्लस 1 dx. ठीक है. अभी क्या होगा ये, हियर आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1 प्लस 3 माइनस 2 1/2 अपॉन 2x प्लस 1. वो बाहर वाला जो 2 है उसको अंदर लेके मल्टीप्लाई किया मैंने, सॉरी. हाँ, तो ये क्या होगा, 2 into 2x plus 1 plus 2 cancel 1 and नीचे 2x plus 1. And now I can see that it can be separated easily. तो पहले टर्म में जब सेपरेट करेंगे तो ओनली 2 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1/2x plus 1. अब तो दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है, 2 का इंटीग्रेशन 2x, दिस इज लाइक 1/x, तो दैट विल बी log of mod of 2x plus 1 डिवाइड बाई 2 प्लस c. तो बस यही आपका फाइनल आंसर. सबको समझ में आया बच्चों? ये आगे तो इसको कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो विल जस्ट कीप इट एज इट इज. सबको समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स?
चलो एक एडजस्टमेंट आप खुद करके मुझे बताओगे थर्ड प्रॉब्लम के लिए। थिंक अबाउट द थर्ड प्रॉब्लम एडजस्टमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ 5x plus 2 upon 3x minus 4 dx। आपको 3x minus 4 ऊपर लाना है। अब आप सोचो कैसे लाओगे। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम ऐसा सब एडजस्टमेंट आ रहा है तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा एकदम इसके जैसे होने के लिए। अभी लास्ट प्रॉब्लम में तो 4x था, 2x बनाना था तो 2 कॉमन ले लिया। अब 5x को 3x बनाने में तो कुछ कॉमन लेने से 3 नहीं होगा ना, करेक्ट बच्चों? तो ऐसा जब ऑड टर्म आता है ना जिसमें से हम डायरेक्ट नहीं ले सकते तो पहले उसको x बना लो। ठीक है, x बनाना मतलब इफ आई टेक 5 कॉमन, क्या बचेगा? x प्लस 2/5 बचेगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट फर्स्ट? रेस्ट ऑल एज इट इज। ठीक है, तो ये हो गया 5 कॉमन ले लिया। अभी x मिल गया, अब मुझे 3x चाहिए तो मैं क्या करूंगा? ब्रैकेट के अंदर 3 का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर 3 से डिवाइड। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा 5/3, अंदर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x प्लस 3 2 जा 6/5। समझा सबको? एंड नाउ आई वांट 3x माइनस 4, तो ब्रैकेट के अंदर -4 + 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/3 एज इट इज। ब्रैकेट के अंदर 3x के साथ -4 लिया और फिर 6/5 के साथ +4 ले लिया, होल अपॉन 3x minus 4. I hope everyone understanding these adjustments what I'm doing here. And now it will be like 5/3 as it is. ये हो जाएगा 3x minus 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 + 6 26/5 होल अपॉन 3x minus 4 dx। 5/3 का अंदर मल्टीप्लाई भी किया और सेपरेट भी किया तो क्या होगा देखो, एक साथ दोनों स्टेप कर रहा हूं तो ये 3x minus 4 कैंसिल हो जाएगा तो पहले टर्म में तो बस 5/3 बचेगा। प्लीज चेक इट आउट। 5/3 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो देखो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 26/3 बचेगा एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 3x minus 4। हेलो, समझ में आया सबको? एक स्टेप मैंने बचाने के लिए थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। एंड नाउ आई कैन इंटीग्रेट इट ना बच्चों। तो कांस्टेंट है 5/3 तो 5/3 का इंटीग्रेशन 5/3 इंटू एक्स प्लस 26/3 कांस्टेंट बाहर लिया 1/x का इंटीग्रेशन log x तो log ऑफ मॉड ऑफ 3x minus 4 होल डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 3 प्लस c। करेक्ट? तो ये फाइनल आंसर हो गया 5/3x प्लस 26/9 log of mod of 3x minus 4 plus c. Have you all understood बच्चों? Main was the adjustment, how I did this adjustment. Taken 5 common, then multiply, divide by 3 to get this 3x minus 4 and so on.
Chalo, very good. Let's move ahead to the fourth question now. It is I is equal to integration of, I'm sorry, I equal to integration of x minus 2 upon root x plus 5. Here also the logic is same. Try to bring x plus 5 in the numerator. ठीक है, तो देखो क्या होगा. तो ये तो इजी है, आई कैन ब्रिंग इट दैट. x माइनस 2 है तो x प्लस 2 किया, x प्लस 5 कर दिया और माइनस 2 के साथ माइनस 5 कर दिया. इज इट ऑल राइट बच्चों? So that now I can write this as x plus 5 minus 7. ठीक है, सेपरेट करो. तो ये होगा x plus 5 डिवाइड बाई रूट ऑफ x plus 5 minus 7 अपॉन रूट ऑफ x plus 5 dx. अभी a अपॉन रूट है तो मालूम है ना कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग. अगर a है और नीचे रूट a है, a मतलब उसमें दो रूट है ना, तो एक रूट है कैंसिल, तो सिंपली ये रूट a होता है ना. तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा. तो दिस कैन बी रिटन एज सिंपली रूट x plus 5 and this is like 7 upon root x plus 5. ठीक है. अब रूट मतलब रेस टू हाफ होता है और अंदर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यानी मैं x रेस टू n के जैसा इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट. तो इंटीग्रेशन सेपरेट किया तो x प्लस 5 रेस टू 1/2 आएगा. यहाँ पे -7 कांस्टेंट बाहर लिया, इसको ऊपर लेकर गए तो मिलेगा x प्लस 5 रेस टू -1/2. एंड नाउ जस्ट इंटीग्रेट, तो ये होगा x प्लस 5 रेस टू 3/2 डिवाइड बाई 3/2, मतलब उल्टा होके 2/3 हो जाएगा. हेलो, ठीक है. यहाँ पर होगा x प्लस 5 रेस टू प्लस 1/2 हो जाएगा. n प्लस 1 अपॉन 1/2 मतलब अपॉन 2/1 और ऑलरेडी 7 है यहाँ पर. आप लोगों को समझ में आ रहा है सबको? रेस टू 1/2 को तो रूट वापस से लिख सकते हैं हम लोग. यस, या रेस टू 1/2 ही छोड़ना है तो वैसा भी छोड़ दो, इट्स अप टू यू. ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है. सो देखो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है फिफ्थ, तो तुमको खुद से करना है. ठीक है, एडजस्टमेंट करना है. सिक्स्थ में साइन 4x अपॉन कॉस 2x है, वो भी इजी है. जो न्यूमरेटर साइन 4x है, एक मिनट में टेक्स्ट बुक दिखाता हूँ आपको. जस्ट अ मिनट, पेज ओपन हो रहा है.
यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 वी आर डूइंग. सो 4x - 1 लाना है, तो देखो पहले क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो 4x - 14 हो जाएगा. बाद में उसमें -1 + 1 एडजस्ट करना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा. 6th में sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देना sin 4x में. तो sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा. तो sin 4x क्या होगा, 2 sin 2x cos 2x. cos 2x कैंसिल, बचेगा 2 sin 2x. उसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, राइट. 1 + sin 5x फॉर्मूला लगा दो ना, होल स्क्वायर वाला. 1 + sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos θ/2 + sin θ/2 द होल स्क्वायर. तो 1 + sin 5x का क्या होगा, cos 5x/2 + sin 5x/2 द होल स्क्वायर. होल स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा cos 5x/2 + sin 5x/2. उसका तो सिंपल इंटीग्रेशन आ जाएगा अलग से. समझ में आ रहा है सबको. cos स्क्वायर x ऑलरेडी हमने सॉल्व किया ना. cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 + cos 2x/2 करके सॉल्व करेंगे. 9th में रैशनलाइजेशन करेंगे. रूट है तो रूट का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. करेक्ट. 10 भी वैसा ही है, लेकिन मैं 10th एक कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा रूट है तो एक रैशनलाइजेशन ये वाला कर लेते. बाकी 5th से लेके 9th तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो अभी हम लोग डायरेक्टली देखते हैं 10th वन. जस्ट मिनट. तो क्वेश्चन है I is equal to integration of 3 upon root of 7x minus 2 minus root of 7x minus 5. This is your question. First step will be what? Rationalization. Simply, it will be 3 upon 7x minus 2 minus 7x minus 5 multiply and divide by 7x minus 2 plus 7x minus 5 divided by 7x minus 2 plus 7x minus 5. न्यूमरेटर तो सिंपली 3 इंटू वो हो जाएगा. डिनोमिनेटर में a + b a - b फॉर्मूला लगेगा. a स्क्वायर मतलब रूट कैंसिल, 7x minus 2 माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, बी स्क्वायर में भी रूट कैंसिल. ठीक है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज. whole divided by, if you open the bracket, it will be 7x minus 2 minus 7x plus 5. Correct. So 7x and 7x gets cancelled. आप देखोगे तो 5 minus 2 3 होता है, वो 3 से भी कैंसिल. कैन आई डू डायरेक्टली. तो हमारे पास सिंपली बचा 7x minus 2 का स्क्वायर रूट प्लस 7x minus 5 का स्क्वायर रूट. तब ये तो रेज टू 1/2 है ना, तो हो गया डायरेक्ट आंसर. 7x minus 2 raised to 3/2 divide by 3/2, also coefficient of x. 7x minus 5 raised to 3/2 upon 3/2 divide by coefficient of x. सबको समझ में आया. बस अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो. 7 3 जा 21/2, 21/2 ऊपर गया 2/21. हेलो, तो दोनों में 2/21 आ गया ना, तो आई कैन टेक 2/21 कॉमन. क्या बोलते हैं आप लोग. तो 2/21 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 7x minus 2 raised to 3/2, 7x minus 5 raised to 3/2 plus c, and this is your answer.
It's very simple, right? Understood, everyone? Okay, so let's move ahead to the last problem of this exercise. That is question number 4. Okay, this is important question. Question is, if f dash x is equal to x minus 3 by x square. Sorry, so x minus 3 by x. उसके बाद f of 1 is 11 by 2. हमको फाइंड करना है f of x. Okay, so consider this as important problem, बच्चों. इसके अंदर ये टाइप के प्रॉब्लम जब f dash x होता है और f(x) फाइंड करना है, तो इसके अंदर हम डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल का यूज करेंगे. सो आई विल सिंपली से कि बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, व्हाट डेफिनेशन वी नो, कि अगर मैंने इंटीग्रेट किया डेरिवेटिव ऑफ f(x) तो मुझे f(x) मिलेगा. हेलो, समझ में आ रहा है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f(x) तो वो क्या होगा? f(x) ही होगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल्स ईच अदर. वो मैंने बताया था ना, एंटी डेरिवेटिव रूल. हाँ, तो बस ये वाला रूल हमको याद रखना है. अभी देखो, अब f dash x मालूम है, सब्स्टिट्यूट किया x माइनस 3 बाई एक्स, उसको इंटीग्रेट करो. x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 बाहर 1 अपॉन एक्स का लॉग x प्लस c. ये क्या है आपका? f ऑफ x आ गया. ठीक है, तो हमको आप बोलोगे सर f ऑफ x ही तो फाइंड करना था, बट उसके अंदर c है ना, c निकालना पड़ेगा. तो इसके लिए तो f ऑफ 1 दिया आपने को. अब क्या करेंगे हम लोग? x की जगह 1 पुट करेंगे. ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे. डिनोमिनेटर 3 बाई एक्स स्क्वायर, क्या लिखा मैंने? क्वेश्चन रॉन्ग लिखा क्या? अच्छा हाँ, 3 बाई एक्स स्क्वायर है, करेक्ट. तो लेट मी चेंज इट. तो फिर ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, तो क्या होगा? हाँ, तो x रेज टू 2 ऊपर जाएगा, करेक्ट. तो 3 इंटू एक्स रेज टू -2 प्लस 1 इज -1 अपॉन -1 हो जाएगा. एक्स रेज टू 2 है ना, वो ऊपर जाएगा तो एक्स रेज टू -2 होगा. अच्छा नहीं, क्वेश्चन में क्यूब है, कोई क्वेश्चन में क्यूब है ना बच्चों? हाँ, मैंने यहाँ पर ही रॉन्ग लिखा लग रहा है. कैसे मैंने रॉन्ग लिखा? क्यूब है, सॉरी. So this is 3 by x cube. So let me just change it. तो x रेज टू 3 ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा -3, तो वो हो जाएगा x रेज टू -2 डिवाइड बाई -2. ठीक है, प्लस. उसको एक स्टेप जरा सॉल्व कर रहे थे, बाद में नंबर 1 डलते. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, और ये माइनस प्लस 3 बाई 2. एक्स रेज टू -2 को नीचे लेकर आ गए तो 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर आ गया. ठीक है, दिस इज 1 fx. Okay, now what I'll do,
एल से पुट x की जगह 1, क्योंकि f ऑफ 1 दिया है, तो क्या मिलेगा, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस c। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, हमको दी गई है 11/2, so this is 11/2, 1/2, 3/2 plus c, तो 11/2 equal to 1 plus 3, 4 divided by 2 is 2 plus c, 2 have to transfer that side, so it's 11/2 minus 2 is c, so c is equal to 7/2, ये आपका फाइनल आंसर c का। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, so therefore equation 1 becomes what, f of x is equal to, क्या था, x square by 2, 3/2x square, x square by 2, 3/2x square, that's all, और फिर प्लस c था, तो बस c की वैल्यू हमको मालूम है 7/2, तो प्लस 7/2, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों। सबको समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने ये, प्लीज देख लीजिए। सबसे पहले हमने रूल यूज किया कि भाई इंटीग्रेशन करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन का, तो फंक्शन ही मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसल्स ईच अदर, करेक्ट। फिर उसमें एक c आया, वो c के वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या किया, जो हमको वैल्यू दिया था f ऑफ 1 की, उसको सब्स्टिट्यूट किया तो c की वैल्यू आ गई, फिर हमने बैक सब्स्टिट्यूट कर दी। यस, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Okay, so with this we have completed exercise 3.1. All of you have to go through all the formulas which we have done, do all the problems, repeat all the questions. Okay, the first exercise will build up your confidence, and it will test your formula also, all formulas, trigo and all मैंने बोला था वो सब by heart करना है, ठीक है? Fine then, that's all for today. Thank you very much students, take care, bye bye.